constitutionalism, the word that you must had heard before also. So do you know what is constitutionalism and what is the difference between constitution and constitutionalism? In this video we are going to discuss about that in great depth. So hello guys, I'm Avinash Garg, the UPSC Digital Mentor. I welcome you all to a discussion of M. Lakshmikant series in which we discuss every chapter of M. Lakshmikant in great depth. And this is the continuation of our earlier video in which we discussed about the concept of constitution, and now in this video we are going to discuss about the remaining topic of that particular chapter, that is related to constitutionalism. So let's get started off and discuss about it. But before moving further, if you had not watched that video, then I request you to just go and watch that video to understand the concept of constitution in better way. So now for the time's sake, let's get started off with the constitutionalism. Guys, before moving further, let's quickly summarize whatever we had read over there. So firstly we discussed about that the word is derived from Latin word, and then we discussed about how constitution tell us how government will be working, the limits of government, and the relation between government and citizens. Then we discussed about how constitution is fundamental law of land, supreme law of state, and then basic law of country. And then we discussed about different functions in which we actually correlated and like join the dots between two pointers कि किस तरह से जो अभी तक हमने डिस्कस किया है वो सारा का सारा चीज फंक्शंस के अंदर आता है. Then we discussed about the classification, 5 type of classification, written or unwritten. Then we discussed evolved constitution and enacted constitution. Third one was rigid and flexible. Fourth one was the federal and unitary, and fifth one was procedural and prescriptive constitution. Now is the time to discuss about constitutionalism and constitutional government. So in normal sense we all say कि constitutionalism is basically the value of constitution. जो constitution की value है, जब हम इज़म की बात करते हैं ना, किसी भी वर्ड के पीछे ISM आता है, इज़म आता है, सो दैट परटेन टूवर्ड द आइडियोलॉजी, कि जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की आइडियोलॉजी है उसको अगर कॉन्स्टिट्यूशनलाइजेशन होता तो शन का मतलब होता है प्रोसीजर. सो कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म बेसिकली मीन्स आइडियोलॉजी. सो लेट्स डिस्कस अबाउट दैट इन ग्रेट डेप्थ इन अ स्ट्रक्चर्ड वे टू हैव बेटर अंडरस्टैंडिंग. सो सबसे पहले हम इसका मीनिंग समझेंगे, फिर हम इसकी डेफिनेशन में जाएंगे, फिर हम देखेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म के अंदर क्या क्या एलिमेंट्स आते हैं. सबसे पहले चलते हैं मीनिंग के ऊपर. So although concept of constitution and constitutionalisms are closely related to each other, but there are definitely few differences. जैसे मैंने आपको बोला constitutionalism है, so that means ideology of constitution, but फिर भी कहीं ना कहीं उनमें differences आते हैं. हम लोग ये नहीं बोल सकते कि constitution और constitutionalism बिल्कुल सेम चीज़ है. वो क्यों नहीं बोल सकते, उनमें क्या क्या differences हैं वो आप ज़रूर समझिए स्टार्टिंग में, ताकि वो प्रॉब्लमेटिक ना हो बाद में क्लैरिटी में. सो सबसे पहले आता है कि कंट्री में हो सकता है कॉन्स्टिट्यूशन हो बट कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म ना हो. अब ऐसा कैसे हो सकता है, क्योंकि मैं तो आपको बोल रही हूँ कि कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म इज मोर रिलेटेड टू आइडियोलॉजी. तो ऐसा क्यों हो कि कॉन्स्टिट्यूशन हो पर कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म ना हो? उसका आंसर है कि अगर वो डिक्टेटरशिप है वहाँ पे, अगर उस कंट्री में डिक्टेटरशिप है तो उस केस में कॉन्स्टिट्यूशन होके भी नहीं है. कॉन्स्टिट्यूशन है बट फिर भी पावर कहाँ है, एक पर्सन के हाथ में, डिक्टेटर के हाथ में. तो अगर उस पर्सन के हाथ में सारी पावर है तो क्या वो इन फ्यूचर दूसरे लोगों को वो डिसिमेट करेगा? कभी भी नहीं करेगा. क्या वो कॉन्स्टिट्यूशन की जो वैल्यूज़ है उसके अकॉर्डिंगली वर्क करने देगा? देखो, कॉन्स्टिट्यूशन हमेशा लोगों की एस्पिरेशंस के अकॉर्डिंगली बनता है. तो किसी की भी एस्पिरेशन नहीं होगी कि सिंगल डिक्टेटर के हाथ में सारी पावर हो. बट अगर डिक्टेटर वहाँ आ गया है और उसने अपनी डिक्टेटरशिप जमा दी है तो उस केस में कॉन्स्टिट्यूशन एक बुक की फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है पर उसकी वैल्यू ही नहीं है. और अगर उसकी वैल्यू ही नहीं है तो उसकी आइडियोलॉजी तो क्या ही रहेगी. इसलिए उस ऐसे सर्कमस्टांसेस में कॉन्स्टिट्यूशन तो है बट कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म नहीं है. राइट. सो दिस इज द फर्स्ट एग्जाम्पल ऑफ दैट. Then comes constitutionalism recognize need for power to government but also limits the power. कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म में ये ज़रूर इंपॉर्टेंट चीज़ आएगी कि उसमें गवर्नमेंट को पावर तो दी जाती है, डेफिनेटली कॉन्स्टिट्यूशन में भी पावर दी जा रही है, बट कॉन्स्टिट्यूशन में भी उसकी पावर को, गवर्नमेंट की पावर को रिस्ट्रिक्ट किया जा रहा है. सो इन केस देयर इज अनलिमिटेड पावर ऑफ गवर्नमेंट, देयर विल नॉट बी कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म. कि अब देखो, कॉन्स्टिट्यूशन में हमेशा
जो गवर्नमेंट उसे पावर दी जाएगी, बट बहुत जगह पे उसकी पावर को रिस्ट्रिक्ट भी किया जाएगा। ये कॉन्स्टिट्यूशन का एक जैसे हम बोलो ना कि एक बेसिक फ्रेमवर्क है कि वो पावर भी देता है पर पावर रिस्ट्रिक्ट भी करते हैं, क्योंकि सारी पावर एक बंदे के हाथ में नहीं देनी या एक ऑर्गेनाइजेशन के हाथ में नहीं देनी होती है, और जो पावर होती है वो डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन्स में होती है इन एनी पॉलिटी। तो जो कॉन्स्टिट्यूशन की बेसिक वैल्यू है वही ये है कि जो पावर मिल रही है गवर्नमेंट वो कहीं ना कहीं रिस्ट्रिक्ट हो। अगर इन केस गवर्नमेंट के पास अनलिमिटेड पावर आ जाती है, उसकी पावर में कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, तो वो कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म की ही आइडियोलॉजी के अगेंस्ट में होगा, मतलब कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म के अगेंस्ट में होगा, हम ऐसा बोल सकते हैं। तो इसलिए ऐसे सर्कमस्टांसेस में जहां गवर्नमेंट के पास ओवर पावर आ जाती है, मतलब पूरी अनऑथराइज्ड पावर है कि कोई उन्हें क्वेश्चन ही नहीं कर सकता, अनक्वेश्चनेबल पावर, तो उस केस में क्या हो रहा है कि वहां कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, राइट। तो ये दूसरा कंडीशन। Third is, if in case constitutional government is not democratic, then constitutionalism will be threatened. क्योंकि अगर डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होगी तभी वो कॉन्स्टिट्यूशन की वैल्यूज को चेरिश करेगी। अगर वो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट नहीं है, वो ऑटोक्रेटिक है, वो कोई भी ऐसा सर्कमस्टांसेस है, तो उस केस में क्या है कि डेफिनेटली जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसकी वैल्यूज को चेरिश नहीं किया जाएगा। बाय डिफॉल्ट हर ह्यूमन बीइंग ये चाहता है कि वहां पे डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट ही हो। हमारे पास डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है, इसलिए बहुत बार ऐसे आप डिबेट सुनते होंगे कि हमारे लिए जो हमारी डेमोक्रेसी है वो प्रॉब्लम है, उसकी वजह से हम ऐसे राइज नहीं कर पाए। अब चाइना का एग्जाम्पल देखो, वो कैसे राइज कर पाए, वो हम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि हम डेमोक्रेटिक है। अगर आप डेमोक्रेटिक नहीं होते तो आप इतना बोल भी नहीं पाते, राइट। तो वो हमारी एक ब्यूटी है हमारी डेमोक्रेसी की, जो हमारे पास फ्रीडम टू स्पीक है। तो ऑल्दो वही मैं बोल रही हूँ कि बाय डिफॉल्ट हर ह्यूमन बीइंग डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट ही चाहता है। तो अगर डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट नहीं है, अगर डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट किसी भी पॉलिटी में एग्जिस्ट नहीं कर रही है, तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म को अपने आप में थ्रेट है। क्योंकि अगर डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट नहीं होगी, वो कॉन्स्टिट्यूशन की वैल्यूज को चेरिश नहीं करेगी, वो कहीं ना कहीं ऑटोक्रेटिक होगी, तो वो अपनी अथॉरिटी जमाने के लिए अपने हिसाब से चीज़ों को मॉड्यूलेट कर देगी। सो ये है 3 सर्कमस्टांसेस जिसमें हम बोल सकते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन हो के भी कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म को थ्रेट है। फर्स्ट हमने देखा डिक्टेटरशिप के बारे में कि अगर वहाँ डिक्टेटर हो गए तो ही कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म को थ्रेट है। फिर दूसरा देखा कि अगर गवर्नमेंट के पास अनलिमिटेड पावर आ जाती है तो भी कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म को थ्रेट है। थर्ड हमने देखा कि अगर इन केस वहाँ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट नहीं है तो भी जो हमारी कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म है उसे थ्रेट है, राइट। तो ये वैसे कुछ सर्कमस्टांसेस थे जहां हमने ये देख लिया कि कॉन्स्टिट्यूशन और कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म ऑल्दो रिलेटेड है, बट ऐसा हो सकता है कि कॉन्स्टिट्यूशन हो पर कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म ना हो। सो दिस इज द बेसिक मीनिंग। हम बोल सकते हैं कि जब हमने शुरू में डिस्कस किया कि कॉन्स्टिट्यूशन और कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म में क्या डिफरेंस है। अब आते हैं हम उसकी डेफिनेशन के ऊपर, बिकॉज आई होप कि अब आपको इसका मीनिंग प्रॉपर्ली क्लियर होगा। तो जब हम इसकी डेफिनेशन डिस्कस करते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म मीन्स एसेंशियल लिमिटेड गवर्नमेंट। इट इज एंटीथेसिस ऑफ गवर्नमेंट बाय द अनरिस्ट्रेन्ड विल ऑफ रूलर्स। हमने पहले ही देख लिया ना, जब हमने थ्रेट में देखा कि कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म में बेसिकली जो गवर्नमेंट है उसकी पावर को कहीं ना कहीं रिस्ट्रिक्ट भी किया जाता है। उनके पास अनऑथराइज्ड या एक्सट्रीम अनरिस्ट्रेन्ड कोई ऐसी पावर नहीं होती है। तो अगर हम कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म की बात करें, दैट एसेंशियली मीन्स लिमिटेड गवर्नमेंट, कि गवर्नमेंट लिमिटेड होगी। सो इट इज एंटीथेसिस कि जो थीसिस आते हैं कि जो गवर्नमेंट है उनके पास बहुत ज़्यादा पावर हो, तो उसके अगेंस्ट में है। सो फर्स्ट डेफिनेशन ये। सेकेंड इज रिगार्डलेस ऑफ द एक्चुअल फॉर्म ऑफ इफेक्टिवनेस ऑफ रिस्ट्रेंट्स, इट अज्यूम्स लिमिटेशन ऑन गवर्नमेंट एज अपोज टू आर्बिट्रेरी गवर्नमेंट। कि यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म की अगर हम बात कर रहे हैं तो उसमें ये बोला जाता है कि जो लिमिटेशंस लगाई गई हैं गवर्नमेंट के ऊपर, दैट इज रिक्वायर्ड इन ऑल सर्कमस्टांसेस, क्योंकि उससे आर्बिट्रेरी गवर्नमेंट एक्शंस को कहीं ना कहीं रोका जाता है। देखो पॉइंट सेम है कि अगर गवर्नमेंट के पास अनऑथराइज्ड अनक्वेश्चनेबल पावर्स हो जाएंगी तो वो कुछ भी कर सकती है। अब गवर्नमेंट कहीं ना कहीं क्यों रुक जाती है, कहीं ना कहीं अगर उनकी कुछ पॉलिसीज होती है उन्हें फिर भी वहाँ पे क्यों रिस्ट्रेन रखना पड़ता है, क्योंकि वहाँ पे उनकी पावर्स को रिस्ट्रिक्ट करने के लिए ऐसे प्रोविजंस है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। अगर ऐसा नहीं होता तो आपको नहीं लगता कि डेमोक्रेटिक कहने को रह जाता बट एक्चुअली ऑटोक्रेटिक रूल हो जाता।
तो ऐसा ना हो, इसके लिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसे फ्रेमवर्क्स हैं जहाँ पे जो गवर्नमेंट है उसकी पावर को लिमिट किया जाता है, और यही हम कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म की डेफिनेशन में इंक्लूड कर सकते हैं, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म इज नथिंग डिफरेंट देन कॉन्स्टिट्यूशन, इट इज मोर रिलेटेड टू आइडियोलॉजी ऑफ अवर कॉन्स्टिट्यूशन, राइट। मैंने आपको पहले बताया जो इज्म होता है दैट इज रिलेटेड टू आइडियोलॉजी। सो अभी हमने मीनिंग देख लिया, हमने देख लिया किन सर्कमस्टांसेस में कॉन्स्टिट्यूशन और कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म होने के बावजूद भी, कॉन्स्टिट्यूशन है बट उसके होने के बावजूद भी कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म पे थ्रेट होगा। फिर हमने देखा कि डेफिनेशन क्या है। अब आ जाते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म के एलिमेंट्स क्या क्या इंक्लूड हो सकते हैं अगर हम उन्हें डिस्कस करें। तो सबसे पहले आता है पॉपुलर सॉवरेनिटी, कि कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, क्योंकि देखो बाय डिफॉल्ट हर कोई सॉवरन रहेगा। मैं आपको बार बार बाय डिफॉल्ट क्यों बता रही हूँ, क्योंकि आप एक चीज़ समझिए, जब हम कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म डिस्कस कर रहे हैं तो हम कॉन्स्टिट्यूशन की आइडियोलॉजी डिस्कस कर रहे हैं, और कॉन्स्टिट्यूशन क्या दिखाता है, एस्पिरेशंस ऑफ पीपल। तो एस्पिरेशन लोगों की क्या होगी, वही तो डिफाइन करेगा ना कि कॉन्स्टिट्यूशन की वैल्यू क्या है। तो अगर हम एस्पिरेशन ऑफ पीपल की बात करें, हर कोई सॉवरन रहना चाहता है। अब इंडिया की आप एग्जाम्पल लीजिए, हमारे ऊपर कॉलोनियल पावर ने रूल किया था, तो हमें पता है सॉवरेनिटी की क्या वैल्यू है। तो हम लोग भी चाहेंगे कि हमारी जो पॉलिटी है वो सॉवरन रहे। तो इसलिए फर्स्ट फीचर कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म का एलिमेंट अगर हम बोले तो वो सॉवरेनिटी। देन रूल ऑफ लॉ। रूल ऑफ लॉ क्यों, पहले किंग रूल थे, राइट, किंग इज रूल, नाउ लॉ इज किंग, राइट। तो इस तरह से सब चीज़ चेंज हुई है। तो ऐसे ही हम ये चाहते हैं कि जो लॉ है उसका ही रूल हो, किसी भी पर्सन के हाथ में सारी अथॉरिटी ना हो, कोई किंग रूल ना करे। इसीलिए हम लोग बार बार बोल रहे हैं कि जो गवर्नमेंट है उसकी पावर को लिमिट करना कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म का इसेंशियल पार्ट है। तो इसलिए हम बोल रहे हैं कि रूल ऑफ लॉ एलिमेंट होगा कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म का। देन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, अगर डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट नहीं होगी तो अपने आप में कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म को ही थ्रेट होगा कॉन्स्टिट्यूशन होने के बावजूद। ये हमने पहले ही डिस्कस कर लिया है, तो इसलिए ये हो गया एलिमेंट। देन सेपरेशन ऑफ पावर, जब तक पावर्स डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है। अब देखो आप एक घर लीजिए, उस घर में सपोज कीजिए आप सारे के सारा काम एक पर्सन को दे देते हो, सपोज आपने फादर को ही घर के सारे काम मैनेज करने को दे दिए, तो क्या वो कर लेंगे? बिल्कुल नहीं कर पाएंगे, वो कहीं ना कहीं एग्जॉस्ट हो जाएंगे, बिकॉज एज नॉर्मल ह्यूमन आप एक पॉइंट के बाद किसी को एक्सटेंड नहीं कर सकते, अदरवाइज वो मतलब थ्रेशोल्ड जब वो निकल जाता है तो उसके बाद वो बर्नआउट वाली स्टेज स्टार्ट हो जाती है। तो वैसे यहाँ पे भी क्या होगा, डिफरेंट ऑर्गन्स रहेंगे पॉलिटी में, ताकि इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन हो सके, इफेक्टिव वर्किंग हो सके हमारी पॉलिटी में। और जितने ऑर्गन्स हैं उन सबको अपनी अपने जुरिस्डिक्शन में या अपने अपने डिपार्टमेंट में काम करने के लिए पावर मिलेगी। तो वो पावर सेपरेटेड रहेंगी एक दूसरे से। अगर मेरा जोन है कि मुझे सपोज आज घर में खाना बनाना है, राइट, तो वो मेरा जोन है, मैं उस पर अपने हिसाब से काम करूंगी। अगर मेरा जोन है कि आज मुझे पीपीटी बनाना है तो मैं उस हिसाब से काम करूंगी। तो वही सेम आपके साथ है, वही सेम हमारी पॉलिटी के साथ है कि पॉलिटी में भी पावर्स जो है वो सेपरेटेड होंगी, हर किसी के अपने अपने जोन के अकॉर्डिंगली उसे पावर्स दी जाएंगी। तो सेपरेशन ऑफ पावर भी एक कंसेप्ट आता है। देन इंडिपेंडेंट जुडिशरी, की जो जुडिशरी है वो इंडिपेंडेंट होगी। अगर वो इंडिपेंडेंट नहीं होगी तो जुडिशरी का काम क्या है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को इंटरप्रिटेट करना, क्योंकि जब ऐसे सर्कमस्टांसेस आए कि जहाँ पे लगे कि हाँ कहीं ना कहीं कॉन्ट्रडिक्शन हो रहा है बिटवीन टू पार्ट्स, तो वहाँ पे उन चीज़ों को टैकल करना। तो इसलिए उनका इंडिपेंडेंट होना बहुत ज़रूरी है। अगर वो एक पर्सन को या गवर्नमेंट को फेवर करेगी कहीं ना कहीं फेवर लेने के चक्कर में, तो वो हमारी पूरी पूरी कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म को ही थ्रेट कर देगी। तो इसलिए एक एलिमेंट कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म क्या क्या है, इंडिपेंडेंट जुडिशरी। देन सिविलियन कंट्रोल ऑफ मिलिट्री, दैट इज लाइक वेल सेड, आई डोंट बिलीव यहाँ पे हमें कुछ डिस्कस करने की ज़रूरत है। पुलिस गवर्न बाय लॉ एंड जुडिशियल कंट्रोल, कि पुलिस ऐसी होनी चाहिए जो लॉ के अकॉर्डिंगली गवर्न करेगी और वहाँ पे उनके ऊपर जुडिशियल कंट्रोल रहेगा। रिस्पेक्ट फॉर इंडिविजुअल राइट्स, तो ये सारी की सारी वो चीज़ें हैं जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आपको बाय डिफॉल्ट दिखती है। इसीलिए मैं आपको बोल रही हूँ कि कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म इज नथिंग मोर देन आइडियोलॉजी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। सो ये है एलिमेंट्स, अगर हम बात करें हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो होने चाहिए कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म के एलिमेंट्स। तो सबसे पहले हमने ये देखा कि कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म क्या होता है, उसका मीनिंग देखा, जिसमें हमने ये भी देखा कि क्या क्या ऐसे सर्कमस्टांसेस हो सकते हैं जहाँ पे जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो तो एग्जिस्ट कर रहा है बट कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म एब्सेंट है। हमने उसके एग्जाम्पल्स देखे।
फिर हमने डेफिनेशन देखी कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म की कि अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन अगर हम कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म के बारे में डिस्कस करें तो वहाँ पे बेसिक फीचर हम बोल रहे हैं तो वो क्या है कि गवर्नमेंट की पावर को लिमिट करना, राइट, वो हमने डिस्कस किया। फिर हमने एलिमेंट्स डिस्कस किए कि कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म के अंदर क्या क्या एलिमेंट्स हो सकते हैं, जिसमें हमने बहुत सारे ऐसे एलिमेंट्स देखे जो बाय डिफॉल्ट हमें पता है, बाय डिफॉल्ट हम बहुत बार डिस्कस करते हैं। इंडिपेंडेंट जुडिशरी हमने देखा, हमने एलिमेंट्स में देखा सॉवरेनिटी के बारे में। तो ये सारी की सारी चीज़ें एक्चुअली डिफाइन कर रही है कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म के बारे में। सो नाउ आई होप आपको कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म के बारे में अच्छे से समझ में आ गया होगा। एंड अगेन द सेम थिंग, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म इज basically ideology of our constitution. So that was it for this particular video, and by this we end up a chapter on concept of constitution. So I hope now you are well aware about constitution and constitutionalism. So if you have any doubt, just let me know by writing it down in comment box below, and if you like the video then hit the like button and subscribe to my channel if you hadn't yet, and hit the bell icon so that all notification of new videos gets delivered to you. Always remember guys, I do conduct a free master class over which I handhold people to go through this UPSC journey effortlessly. So you can also enroll for the same by clicking on the link given in description below. I will love to see you all over there. So that was it for this particular video. I will meet you all in the next video with the next chapter. Till then, bye bye guys.